लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे आपको हर एक कॉमर्स का सब्जेक्ट मिलेगा बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग मैथ्स। सो आज हम लोग आ गए हैं फिर से इकोनॉमिक लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। सो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग बिल्कुल हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट रहेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो आज पढ़ेंगे थ्योरी पोर्शन, जहां पे हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट्स करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, जहां पे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे और डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स मेथड करेंगे। ये सब हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का सारा प्रॉब्लम्स और सारा सम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेशनल इनकम अकाउंटिंग। So we'll start with a few terminologies of macroeconomics. तो क्या है ये terminologies? Let's get started. So पहला terminology है मेरा different categories of goods. क्या है ये categories of goods? First category of goods है consumption goods. Consumption मतलब whatever goods we consumers are having it. Supposedly I am having milk, I am having fish, I am having any kind of vegetables. Those are my consumption goods. What we consume, what the final consumers are consuming, those are consumption goods. Second category of goods है capital goods. क्या है ये capital goods? The goods which are used to make some other goods. Supposedly कोई plant, कोई machinery क्या करते ये मशीनरी हेल्प करते कोई और गुड्स को बनाने के लिए। सो द गुड्स विच इज हेल्पिंग सम अदर गुड्स फॉर द फाइनल प्रोडक्शन, दैट आर माय कैपिटल गुड्स। सेकंड हुआ। थर्ड कम्स टू फाइनल गुड्स which do not have any further sale. Final goods are those goods which the consumer are consuming for a particular period of time and they do not have a perfect consumption. So the consumption which is done by me and it is done, I mean no further resale is possible, no further sale is possible for those goods, those are my final goods. So this is what comes in national income accounting. So if we come to concept number 4, we have something called intermediate goods. What do we mean by intermediate? Intermediate matlab middle. The goods which help the other goods for reselling process or such kind of a goods which help for their खुद का production or which help for खुद का resale or sale, या तो फिर it helps other goods to resell their product. So for example, if I take milk as an example, milk is a product which can be sold itself. And secondly, if we have to prepare a tea near our tea stalls, we need milk. So milk is a kind of intermediate goods. So the fifth that we have is a concept of stock. So in stock, what do we mean? It's a static concept. Something that is there over a period of time, which cannot change, which is there, just there over a period of time. So if I take an example for water in a tank, it's there, it's always there, it will refill again, it will be there. So that is what we mean by business stock, something that is kept in our house. For example, in your grocery, ऐसे सब कुछ खा लोगे उसके बाद सब groceries खरीदते हो, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो बचा रहता है घर पे. So that is what we mean by stock. After stock, the next concept that we have is a flow concept. Flow concept is such a concept which is dynamic in nature, which goes over a period of time. So for example, if we take per hour, per day, something, investment, we keep on doing it. We invest and we stop and we watch? No. We invest, we see how is it going, we keep on changing it. So it's a dynamic concept. Stock is a static concept and flow is a dynamic concept which helps us going. So the next concept that we come to is investment. What do we mean by investment? Investment means adding to the existing stock or capital. So supposedly I have made a building. Now I want to invest in that building to make an interior of the building, to do something else in the building. So I'm investing in the building. So existing stock of capital may, when I'm adding something, when I'm putting in something else, some other kind of a money to do something better, that is what my investment is. Now the next thing that we have is a net investment. क्या है ये net investment? Net investment है total investment minus depreciation. So you might be thinking, what is depreciation? I'm sure you have heard about it, but what is depreciation? Depreciation means when any asset
is losing out its value over a period of time. So supposedly I have got a car for myself, a beautiful looking car for myself. So if I've got a car, so the day I got the first car and I clicked a picture, will that car remain same after 10 years? No, because it will wear out, it will tear, it will have some kind of a breakdown. So that wear, tear, breakdown should be calculated. Those wear, tear, breakdown of that car after 10 years should be deducted. So that is depreciation. जब वो कार का वैल्यू depreciate मतलब कम हो जाता है, that is what we mean by depreciation. So these are the three concepts that we need to remember. So these are the concept of macroeconomics that we need to remember before we step on to the main concept of macroeconomics and national income accounting. So the next concepts that we come to is the gross national product, gross domestic product. ये सब कॉन्सेप्ट्स लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो क्या है ये जीडीपी? जीडीपी आप लोग सुने होंगे, काफी टाइम से कोविड के टाइम पे हम लोग सुन रहे हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी ये, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है. क्या है ये जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट डू वी मीन? When we calculate the monetary value of all the final goods and services, जो सारा goods and services है मेरा कंट्री का, within a domestic territory में जितना सारा भी goods A, B, C, D, सारा goods and services का monetary value जब calculate करते हैं within a specific domestic territory, that is what we mean by the GDP of the country. So the next concept that we have is gross national product. क्या है ये gross national product? Gross national product मतलब whatever we are earning, that is the final goods and services, the monetary value of the final goods and services. तो GDP क्या था? GDP बस मेरा domestic territory के अंदर, country के अंदर जो मेरा monetary value of final goods and services है, that was my GDP. GDP, gross domestic product, सारा final value of goods and services plus नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से भी जो पैसा आ रहा है, जैसे कि यूके से, यूएसए से जो सारा पैसा आ रहा है, वो है मेरा जीएनपी ऑफ द कंट्री एट मार्केट प्राइस. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हियर टू डिस्क्राइब इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? सपोजेटली मुझे, मेरे को, मेरा कंट्री में कुछ भी इनकम अब्रॉड से आ रहा है, तो मैम सारा इनकम अब्रॉड से आ रहा है. Supposedly some income which is earned by the resident of the country from abroad, उसको लेंगे. और किसको लेंगे? कोई भी नॉन रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री है जो इंडियन नहीं है, वो यहाँ पे कितना इनकम अर्न कर रहा है, वो दोनों को ऐड करेंगे. सो क्या क्या लेंगे? एक तो रेसिडेंट, जैसे कि हम अब्रॉड में क्या इनकम अर्न कर रहे उसको लेंगे, प्लस अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, जैसे कि कोई फॉरेनर यहाँ आके रह रहा है और कुछ इनकम अर्न कर रहा है, उसको लेंगे. सो इफ वी ऐड दिस टू अप, वी गेट net factor income from abroad. The next topic that we have is circular flow of income. क्या है ये circular flow of income? Supposedly मेरा इकोनॉमी में दो फाउंडेशन है, एक मेरा फर्म है, एक मेरा हाउस होल्ड है. Both are related to each other. They work in a cycle. So for example, I'm sure everyone has learned that we have got four factors of production. क्या क्या था मेरा factors of production? Land, labor, capital, entrepreneurship. ये मेरा 4 factors of production था. अब ये 4 factors of production मेरा कैसे help करता है? Like supposedly मेरा land है जिसके लिए मेरे को rent pay करना पड़ता है, मेरा workers काम करेंगे उसको मेरे को wage देना पड़ेगा. थर्ड है मेरा अगर कैपिटल लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 4 अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो प्रॉफिट के लिए सोचता है. तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज हेल्प्ड और गिव्स अस सम काइंड ऑफ अ रिटर्न. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वी नीड टू मेंशन दिस डायग्राम, और वी ऑलवेज हैव टू फॉलो दिस डायग्राम. व्हाट डज दिस डायग्राम टॉक अबाउट? सो हियर वी हैव, इफ वी सी टू दिस डायग्राम, वी हैव गॉट फर्म्स एंड द हाउसहोल्ड. तो फर्म्स एंड द हाउसहोल्ड के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन वर्क्स लाइक अ साइकिल. कैसे साइकिल और सर्कुलर मोशन पे ये रिलेशन काम करता है? तो अगर हम लोग आउटर पोर्शन ऑफ द डायग्राम देखेंगे तो हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि लेबर दे रहे, हाउस होल्ड से मेरे फैक्ट्री पे काम करने के लिए लेबर आ रहा है, कैपिटल दे रहे, ये सब दे रहे ना. फर्म्स
उसके और हाउस होल्ड फर्म्स को और क्या दे रहे हैं, स्पेंडिंग्स कर रहे हैं फर्म्स के ऊपर, हाउस होल्ड ये कर रहे हैं ना। फर्म का भी कुछ ड्यूटी है, जो मेरा इनर सर्कल है, फर्म का क्या ड्यूटी है, फर्म इन रिटर्न हाउस होल्ड को फर्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले फर्म फैक्टर्स पेमेंट भी दे रहे। जैसे कि आप लोग सोचिए, हाउस होल्ड फर्म को मेरा क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे। हाउस होल्ड अगर फर्म को फैक्टर सर्विसेज देंगे तो इन रिटर्न फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, राइट। जैसे कि मेरा हाउस होल्ड अगर फर्म को लेबर दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को वापस में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। मतलब तुम लेबर दे रहे हो, मैं तुमको वेज दे रहा हूं, तो फर्म और हाउस होल्ड का ये रिलेशन हो गया। अब ऊपर पार्ट में देखते हैं, सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म के ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है, उसके बदले फर्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड फर्म में जाके पैसा दे रहा है। हाउस होल्ड अगर फर्म को जाके पैसा दे रहा है, फर्म इन रिटर्न क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड कर रहे। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन अ सर्कुलर मोशन। हाउस होल्ड फर्म को कुछ दे रहे, फर्म वापस हाउस होल्ड को वही दे रहे in a different form. So this is how the entire two-sector economy or two-sector model works when we take into consideration the firm and the household, how they work in a circular motion. This is what we have for circular flow of income in two-sector model. So the next topic that we have is method of calculating national income. अब national income हो रहा है, national income ये है वो है, अब उसका कोई कोई methods follow करना पड़ता है national income का calculate करने के लिए। 3 method follow करते हैं। Number 1 method is value added method, number 2 is expenditure method and number 3 is income method. So number 1 method जानेंगे पहले, value added method. Value added method is also known as the product method or it is known as the primary objective method. क्या है ये method? सपोजिटली मेरे को फॉर एग्जाम्पल केक बनाना है, ओके अगर मेरे को केक बनाना है, मेरे लिए उसके लिए केक बनाने के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट लगेगा। सपोजिटली आई नीड फ्लावर, आई नीड एग, आई नीड सम काइंड ऑफ अ फ्लेवर लाइक वैनिला, चॉकलेट, समथिंग। सो आई नीड प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट्स विल हैव सम काइंड ऑफ वैल्यूज। सो इफ वी एड द वैल्यूज ऑफ दोस प्रोडक्ट्स, सो व्हाट हैपन, इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट during various stages of the production into account when we take it into consideration, उसको बोलते हैं value added method. So national income कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के लिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना सारा भी मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू है वो केक बनाने के लिए सारा वैल्यू को हर एक प्रोडक्शन स्टेज में ऐड कर लेंगे, तब होता है मेरा वैल्यू एडेड मेथड। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, राइट। सो सपोजिटली एक्सपेंडिचर मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर, एंटायर एक्सपेंडिचर दैट वी हैव टेकन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। सो सपोजिटली अगर मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, हर साल में एक्सपेंडिचर होता है, कुछ प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी एक्सपेंडिचर होता है। सो एक्सपेंडिचर मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, इन एन इकोनॉमी इट कैन बी डन बाय इंडिविजुअल्स। एक्सपेंसिव हम लोग इंडिविजुअल से एक्सपेंडिचर करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है और कौन करता है, बिजनेस भी एक्सपेंडिचर करता है। सो देयरफॉर एंड आल्सो वी कैन नॉट फॉरगेट गवर्नमेंट डज एन एक्सपेंडिचर। सारा एक्सपेंडिचर को एक्यूमुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है जो नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट होता है। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कंजम्पशन लेंगे जो इंडिविजुअल करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे जो गवर्नमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट लेंगे और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेंगे। सो सारा व्हेन वी टेक इट इनटू कंसीडरेशन दैट बिकम्स एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेशन फॉर नेशनल इनकम। सो द थर्ड मेथड एंड द लास्ट मेथड दैट वी हैव इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड बिल्कुल दरकार है। तो इसके लिए वी हैव टू जनरेट कहां से मेरा इनकम जनरेशन होता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी providing services to the other people in the country by the use of the asset in a disposable way. So supposedly if I take it into consideration income method पे, so मेरा land, labor, capital, land के बदले मेरे को क्या देना पड़ रहा है, land के बदले मेरे को rent देना पड़ रहा है, कैपिटल के बदले मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इनकम मेथड का लास्ट पार्ट है जहां पे हम लोग को याद रखना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वेजेस, जो लेबर को मिल रहा है वेजेस कैलकुलेट करना पड़ रहा है।
कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल से इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सारा इनकम को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम इन एन इकोनॉमी, इफ वी ऐड ऑल द इनकम टुगेदर for the domestic economy, for the domestic product at the factor cost, और उसको हम लोग बोल भी सकते हैं NDP at factor cost। इसको हम लोग, ये पूरा मैटर को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द नेशनल इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। NNP at factor cost is equal to NDP at factor cost प्लस नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सारा जो इनकम मेरा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अब्रॉड में हो रहा है, तुम यहाँ अर्न करो, यूपी में अर्न करो, यूएसए में अर्न करो, कहीं पे भी सारा इनकम जब टोटल कर लोगे, दैट इज व्हाट वी कैलकुलेट, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। With that we have come to the end of the national income accounting। national income accounting में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लिए हैं, हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जान लिए हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर्स मेथड भी जान लिए हैं। बट ये मत सोचना कि मैम ने तो सम्स कराया नहीं, सम्स आएगा नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो पे बस थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट। वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिमिटलेस ब्रेन, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ you like the video. So see you guys in the next video with more sums and problem solving methods. Bye guys.